ITA চেণ্টাৰত শ্ৰীহৰি সৎসংগ সমিতি পূৰ্বোত্তৰৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰভক্তি উৎসৱ। বাবা সত্যনাৰায়ণ মৌৰ্যৰ কলা দক্ষতাই মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তুলিছিল গুৱাহাটীবাসীক। গুৱাহাটীৰ মাছখোৱা ITA চেণ্টাৰত শ্ৰীহৰি সৎসংগ সমিতি পূৰ্বোত্তৰৰ উদ্যোগত ৰাষ্ট্ৰভক্তি উৎসৱ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শিল্পী বাবা সত্যনাৰায়ণ মৌৰ্য আৰু তেওঁৰ দলটোৱে দেশপ্ৰেমমূলক অভিনয়েৰে সভাখন মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তুলিছিল। বাবা মৌৰ্যই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, ভাৰত মাতা, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্ৰীৰাম ভগৱান, হনুমান আদি মহাপুৰুষৰ ছবি অংকন কৰি সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছিল। কাৰ্যসূচীৰ সময়ত ভাৰত মাতা কি জয়, বন্দে মাতৰম আদি শ্লোগানেৰে সমগ্ৰ পৰিৱেশ প্ৰতিধ্বনিত হৈছিল। অতিথিসকলে লেম্প প্ৰজ্বলনেৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে। অধ্যক্ষ অজিত কুমাৰ জানাই প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত থকা সকলো সদস্যক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে শেহতীয়াকৈ বাবা মৌৰ্যই অসমৰ বিভিন্ন জিলা পৰিচালনা কৰি থকা ৰাষ্ট্ৰভক্তি উৎসৱৰ ঐতিহাসিক সফলতাৰ ওপৰত পোহৰ পেলায়। কাৰ্যসূচীৰ সমন্বয়ক বিবেক জালানে জানিবলৈ দিয়ে যে এই কাৰ্যসূচী যোৱা 8 নৱেম্বৰৰ পৰা চলি আছিল। তেওঁ কয় যে অসমত চলি থকা ৰাষ্ট্ৰভক্তি উৎসৱৰ ধাৰাবাহিকখনৰ এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা কাৰ্যসূচীসমূহ পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ জৰিয়তে দেখুৱায়। তেওঁ জনায় যে এতিয়ালৈকে তিনিচুকীয়া জিলাৰ TDAৰ দিৰিয়াল চাহ বাগিচা, ফিল্ডৰ লিম্বুগুৰি চাহ বাগিচাৰ ক্ষেত্ৰত 7টা কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হৈছিল। শিৱসাগৰ জিলাৰ অডিটৰিয়াম, আমগুৰি ডিব্ৰুগড় জিলা দিৰাই চাহ বাগিচা, চিলাপথাৰ দনি পেলো কমপ্লেক্স আৰু বোকাখাতৰ নাট্য মন্দিৰত। জানিব পৰা মতে ৰাষ্ট্ৰভক্তি উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি মাহৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিল শ্ৰীহৰি সৎসংগ সমিতি। পূৰ্বোত্তৰ জিলা আৰু গাঁও পৰ্যায়ৰ সমিতিৰ বিষয়ববী আৰু সদস্যসকলে সমিতিৰ সদস্যসকলৰ ইতিবাচক প্ৰচেষ্টাৰ বাবে এই ধাৰাবাহিকখন স্মৰণীয় সফলতাৰে সমাপ্ত হৈছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে কলাত্মক দক্ষতাৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰা গাঁওবাসীয়ে বাবা মৌৰ্যৰ কলাত্মক দক্ষতা দেখি আচৰিত হৈ পৰে। সম্পাদিত অনুষ্ঠানসমূহৰ আধাৰত এখন তথ্যচিত্ৰ দেখুওৱা হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে শ্ৰীহৰি সৎসংগ সমিতি পূৰ্বোত্তৰ গল্পকাৰ ভগ্নীসকলে ভজন আৰু দেশপ্ৰেমমূলক গীতৰ অবিস্মৰণীয় উপস্থাপন আগবঢ়ায়, য'ত সকলো দৰ্শকে নৃত্য কৰি গল্পকাৰ ভগ্নীসকলৰ উপস্থাপনৰ শলাগ লয়। শেষত বাবা সত্যনাৰায়ণ মৌৰ্যৰ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় আৰু দলৰ সকলো সদস্যক উপহাৰ প্ৰদান কৰা হয়। শ্ৰীহৰি সৎসংগ সমিতি পূৰ্বোত্তৰ এই কাৰ্যসূচী সকলোৰে শলাগ লৈছিল। तो ये नहीं, ये भड़काएंगे जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे। मैं कहता हूँ हम इन सबसे ऊपर उठ के विचार करें, तो उसके लिए हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने और जहां खड़े वही ईमानदार बन जाए। मतलब व्यापारी कोई जरूरत नहीं तिरंगा में झंडा लगा के वंदे मातरम गीत गाए। व्यापारी अपना काम ईमानदारी से करे, अच्छा माल बेचे, बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करे, बच्चों का काम है देशभक्ति। मैं कलाकार हूं तो मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैंने बताया आप कार्यक्रम देखेंगे तो मैं खाली चर्चा करता हूँ। इसमें भी सभी से ये कहूंगा और कलाकारों से भी कहूंगा, भैया अपना समय दीजिए, गांव में भी जाएं, क्योंकि मुझे मालूम है बंबई दिल्ली से कलाकार आएंगे तो गुवाहाटी के लोग बड़ी बड़ी कथाएं कर सकते हैं और आयोजन कर सकते हैं, लेकिन छोटे गांव का आदमी कैसे करेगा? आज शिला पठार का आदमी, और शिला पठार भी गांव है, लेकिन छोटे टी गार्डन का, उदालगिरी के टी गार्डन में वो राम को मानते हैं, लेकिन उनके पास कोई कथा करने वाला नहीं है। तो ये कथा करने वाली बहनें जो आप देख रहे हैं, ये गांव में जाके कथा करेंगी, जो कथाकार हैं। तो ऐसे प्रकल्प यहाँ चल रहे थे, मैंने कहा आप इतना अच्छा काम करो तो मैं भी कुछ योगदान देता हूँ। ये मेरा विषय था। मैं इस भावना से असम में आया हूँ। पहले करीब 20-25 बार में आ चुका हूँ। पहले संस्कार भारती की तरफ से आया, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आया, या वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से आया। इस बार इन लोगों की तरफ से आ गया, तो मेरे को तो देशभक्ति गीत गाना है, तो विचार चल रहा है। कोलगेट कंपनी ने एक नल खोला, मारवाड़ियों ने गौशाला बनाई,
पर क्या हिंदुस्तान लीवर कंपनी, इस हिंदुस्तान लीवर ने एक गाय को एक चारा दिया? आज तक बड़ी से बड़ी कंपनी कोलगेट, पामोलिव, ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये बाटा कंपनी है, बाटा कंपनी ने अरबों रुपए कमाए कि बाटा कंपनी ने किसी गरीब को एक गोली दी? नहीं दी। लेकिन उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि जितनी कंपनियां हैं, इन सबके सीईओ कौन बने चर्च डिसाइड करता है। तो इनका आक्रमण केवल वो नहीं है। हम जब एक लक्ष्य खरीदते, जब हम कोलगेट खरीदते, तो भी हम क्रिश्चियनों को पैसा देते हैं अपने भाइयों को धर्मांतरण के लिए। हम इसलिए मैंने कहा हम अपना योग करें, तो योग की जगह हमको सिखाया जाएगा नहीं तुम योग मत करो। हमको खान पीन में, हमारे खान पान की जगह और कोई खान पान हो जाए तो हमको खान पान से दूर कर दिया गया, हमको अपनी भाषा से दूर किया गया, हमको अपने देवताओं से दूर किया गया। तो मैं पूरी दुनिया में कार्यक्रम कर रहा था। अभी मैं अमेरिका से लौटा ही था और यहाँ 20 दिन कार्यक्रम कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है दुनिया भर में भी आवश्यकता है काम करने की। मुझे एक कार्यक्रम के लिए बुलाया था अरुण जी ने, गुवाहाटी में आप हमारे लिए एक कार्यक्रम कर दीजिए। तो मैंने कहा एक कार्यक्रम मैं आपके लिए करूंगा और कम से कम 10 कार्यक्रम आप मेरे लिए कीजिए। तो ये राष्ट्र भक्ति उत्सव में एक कार्यक्रम था, भारत मां की आरती का। लेकिन मुझे लगा देश के लिए मैं गीत गाता हूँ तो मेरा कोई कर्तव्य है। तो मैं, क्योंकि जितने प्यारे मेरे लिए शंकराचार्य हैं, उतने प्यारे शंकर देव, माधव देव मेरे लिए इतने प्यारे। जितना मैं भगत सिंह को, महाराणा प्रताप को, शिवाजी को मानता हूँ, लाचित बड़फुकन को भी उतने मानता हूँ। रानी गायन दिल्ली मेरे लिए उतनी महत्वपूर्ण है, यहाँ के राजा पृथु मेरे लिए उतने महत्वपूर्ण है। अगर मैं तो अभी गया तो यहाँ मालिनी थान स्थान पड़ता है शिला पथार के पास में, मैं वहां भी गया। लोग बोले आप क्यों जा रहे हो? तो यार जी कृष्ण जी मेरे बाप है, तो रुक्मणी मेरी माता है कि नहीं है, तो मैं अपनी माता के क्षेत्र में क्यों नहीं जाऊंगा? तो जब मैं आसाम आता हूं, मेरी मजबूरी है, पूरे देश की मजबूरी। आप सबसे कहूंगा मैं इस बात को, आपके चैनलों के माध्यम से, और आपसे भी कहूंगा, मुंबई में रहकर यहां असम का व्यक्ति मुंबई के बारे में जानकारी रखता है, असम का व्यक्ति दिल्ली के बारे में जानकारी रखता है, लेकिन केरला का व्यक्ति आसाम के बारे में जानकारी नहीं रखता है। यहाँ पे पंजाबी गीत बजते हैं, यहाँ पे अंग्रेजी के गीत बज जाते हैं, पर असमिया भाषा की अमेरिका में नहीं बजते। क्यों? तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी भाषा को बढ़ाने का विकास हमने नहीं किया। तो मैं तो आसाम के सब भाइयों से, सब कलाकारों से, मेरे साथ कई कलाकार, एक कलाकार मोनी है, ये हमारे यहीं के रहने वाले मोरी गांव के, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। अलग अलग प्रदेशों के लड़के मेरे साथ हैं गाने वाले। और मैं एक ही बात कहता हूँ, हम प्रदेशों से ऊपर उठ कर सोचे, हम जातियों से ऊपर उठ सोचे, क्योंकि नेता नहीं करेंगे। वो राहुल गांधी बैठ के जाति के आधार पर जनगणना करवा, तो एक काम करो, देश में जितने बलात्कार हो रहे हैं वो भी जाति के आधार पर दिखाओ। ये देश में कितने बम फोड़ रहे हैं, या आतंकवादी की भी जाति की जनगणना करो ना, वहां क्यों पीछे हट जाते हो? और मैं इसलिए बहुत साफ साफ संदेश देता हूं, हमको बेवकूफ नहीं बनना। लोग बोलते संकुचित है, मुझे बड़ा दिल नहीं रखना। लोग मुझसे बोलते बाबा जी मरने के बाद डेड बॉडी दान कर दो, मरने के बाद आंख दान कर दो। मैं इनकी ऐसे आंख दान नहीं करूंगा। अगर सरकार मुझे वचन देती है कि तुम्हारी आंखें उस व्यक्ति को दान की जाएगी जो तुम्हारी बहनों को गलत दृष्टि से ना देखे, जो तुम्हारी बहनों को लव जिहाद की दृष्टि से ना देखे, तो मैं अपनी आंखें देने को तैयार हूं। मैं अपना लीवर दूं, मैं उस कम्युनिटी के आदमी को अपना लीवर दूंगा जो खुद भी लीवर देता है। कोई मुस्लिम में हम मतलब लीवर दान नहीं कर सकते, कुरान के खिलाफ है। तो मैं भी बोलता हूं तुम्हारे लिए मैं कोई शरीर का अंग दान करूं, ये भी मेरे खिलाफ है। अगर मान लो नेता लोग खड़े होते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, तो एक काम करो, टैक्स कितना देते हैं, फिर टैक्स भी तय करो। टैक्स कौन सी कम्युनिटी दे रही है, टैक्स हिंदू कितना दे रहे हैं, टैक्स मुस्लिम कितना दे रहे हैं, बलात्कार कौन कितना कर रहा है, ये भी तय करो। यहाँ पर देश में खा कितने रहे, खिला कितने रहे, ये भी तय करो। देश नीति पूर्वोत्तर द्वारा पूरे असम के अंदर में 11 स्थानों के अंदर में ये राष्ट्रभक्ति उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार, लेखक, कवि, संगीतज्ञ, चित्रकार बाबा मौर्य द्वारा यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके अंदर 9 स्थान, 11 में से 9 स्थानों पर टी गार्डन एरिया के अंदर में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसमें 7 में ऑलरेडी आयोजित हो चुके हैं। आज 8वां प्रोग्राम हमारा है। इसके बाद में 3 प्रोग्राम आपके बक्सा डिस्ट्रिक्ट में, उदालगुड़ी और रंगापाड़ा टी स्टेट तेजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आयोजित किए जाएंगे। आपको जानकर खुशी होगी, हजारों की संख्या के अंदर में अगर उन कार्यक्रमों को देखेंगे तो हजारों की संख्या में लोग वहां पर उपस्थित थे। आज गुवाहाटी का ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इसके अंदर में भी आप देखेंगे हरिजन बस्ती से, वेद विद्यालय से, आदमगिरी हॉस्टल से यूथ लोगों को बहुत बड़ी संख्या के अंदर में यहाँ पर आज कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, क्योंकि जब तक देश का युवा नहीं जगेगा, इस देश की हम सुरक्षा नहीं कर सकेंगे। देश के जो हालात है,
उसके अंदर में श्री हरि सत्संग समिति पूर्वोत्तर जो काम कर रही है असम के अंदर में, अपने भाई बहनों को 6 महीने का कठिन परिश्रम करा के प्रशिक्षण उनको दिया जाता है और वो बहनें गांव गांव में जाकर सनातन का झंडा बुलंद कर रही है। आज जो जिस प्रकार से कन्वर्सन टी गार्डन्स के एरिया में ट्राइबल बेल्ट्स में हो रहा है, उसको रोकने में इन बहनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और आने वाले समय के अंदर में इस काम का और भी विस्तार होने जा रहा है। 2 प्रशिक्षण केंद्र हमारे हैं, एक गुवाहाटी 6 माइल के अंदर में, एक तिनसुकिया में पद्मनी टी स्टेट के अंदर में, दोनों जगह प्रशिक्षण चल रहा है। अभी भी वहां पर 20 भाई बहन क्या बोलते हैं प्रशिक्षण ले रहे हैं। आने वाले समय के अंदर में असम को बचाने के लिए ये एक आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট ইত্যাদি এ টু জেড।